Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to cover the following points. First point is partition of closed interval. Second is length of interval. Third is norm or MASH. And fourth is refinement. So we are going to cover all these topics one by one. So first we will see what is partition of closed interval. So to study partition of closed interval, first we have to consider one closed interval. So let I is equal to closed interval AB, okay, be a closed interval, closed and bounded interval, okay. सो अभी बाउंडेड इंटरवल का मतलब क्या होता है, मीन्स दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इट हैज़ अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एज वेल एज लीस्ट अपर बाउंड, ओके. सो फर्स्ट दिस इज अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, ओके. नाउ दिस सेट पी containing a is equal to x0 less than x1 less than x2 and so on less than xn is equal to b, okay. This set p which contains x0 which is less than x1 less than x2 and so on xn is equal to b. यहाँ पे x0 की वैल्यू यहाँ पे a ली है हमने and xn is equal to b. मीन्स जो एंड पॉइंट्स है ना ये क्लोज इंटरवल के, मीन्स a एंड b, उनको x0 एंड xn ऐसे सपोज किया है, ओके. सो or we can write another way as p is equal to x0 comma x1 comma and so on xn of points in I such that a is equal to x0 less than x1 less than up to so on less than xn is equal to b, ओके. अगर हमें ये P एक सेट मिल गया जो सेटिस्फाई करता है ये पर्टिकुलर ऑर्डरिंग को, मीन्स ये x1 क्या है, ग्रेटर देन x0 है, ओके. x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड सो ऑन xn इज ग्रेटर देन xn माइनस 1, ओके. सो इफ वी हैव अ सेट P ऑफ पॉइंट्स इन I such that this particular ordering holds in P, then we can say that P is a partition of closed interval I. Okay, now we are going to see proper definition of it. So the definition is let I is equal to closed interval AB be a closed and bounded interval of R. Means ये जो interval है closed interval AB वो क्या है, closed and bounded है, bounded interval है of R. means इसमें जो भी नंबर्स आएंगे वो रियल होंगे, ओके. कंसिडर अ फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट P विच इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग x0, x1 अप टू सो ऑन xn ऑफ पॉइंट्स इन I. ये जो सब पॉइंट्स हैं वो I के होंगे सच दैट a इज इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन लेस देन xn इज इक्वल टू b. इफ वी हैव दिस सेट which is consisting of points in I such that a is equal to x0 less than x1, means ये x1 should be greater than x0, x2 should be greater than x1, okay. अगर हमें ये set मिल गया P in which we have this particular ordering, okay, then we can say that P will be called a partition of this interval I, okay. And this partition P divides I into non-overlapping subintervals, okay. These all are subintervals of I, x0 comma x1 comma close interval x1 comma x2 and so on close interval xi minus 1 comma xi. So this P divides I into non-overlapping intervals, means ये जो intervals है these do not overlap with each other, okay. We are going to see what is length of the interval. So this is some theory regarding it. So denote delta xk which is equal to xk minus 1, okay. Now if n is the total number of subintervals
मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इज इक्वल टू n है, देन समीशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू, अभी i की जगह पे 1 2 3 एंड सो ऑन करके एक्सपांड करेंगे इसको, सो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा xn. ओके, नाउ डेल्टा x1 अगर k की वैल्यू यहाँ पे 1 पुटअप की, सो क्या आएगा x1 माइनस एक्स नॉट, सो वो ही लिखा है, एंड डेल्टा x2 विल बी x2 माइनस x1 एंड सो ऑन, डेल्टा xn विल बी xn माइनस xn माइनस 1. सो दिस आई हैव रिटन इन दिस वे. अभी ये जो है x1 and minus x1 will get cancelled in the similar way. x2 x3 and so on, xn minus will be cancelled here, and in the next step we will get xn minus x naught. बस यही दो टर्म्स बाकी मिलेंगे हमको. सो अभी xn की वैल्यू क्या है, जैसे p में xn को काय से डिनोट किया था, b से, एंड x naught को a से. सो समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा एक्स आई की वैल्यू होती है b माइनस ए. नाउ इन शॉर्ट, अगर आपको सब इंटरवल दी है ये 2,3, दिस इज अ क्लोज इंटरवल एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल. सो हाउ यू विल फाइंड इट, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1. सो इस इंटरवल की लेंथ कितनी हुई, 1. नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर एग्जाम्पल. So here I will take minus 6 comma minus 3. ओके, सो अभी इसकी लेंथ निकालनी है. सो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, सो माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 6 मीन्स यहाँ पे जैसे ये है b माइनस ए, तो यहाँ पे b की वैल्यू है ये, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a. सो b माइनस ए है ना यहाँ पे, सो b माइनस ऑफ a which is equal to minus 3 plus 6 which is equal to 3. okay, so ये इंटरवल की लेंथ हुई plus 3. okay, now we are going to see our next point. Now we are going to see what is norm. So its definition is the greatest of the length of the segment of partition P is called norm or mesh of P. सो अभी सेगमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, सब इंटरवल. ओके, सो जो भी सब इंटरवल्स रहेंगी अगर उनकी लेंथ निकालेंगे हम, एंड जो भी लेंथ ग्रेटेस्ट हुई, ओके, मीन्स अगर उनकी लेंथ निकालेंगे और जो भी ग्रेटेस्ट मिली हमको लेंथ, उसको बोलेंगे नॉर्म और मैश ऑफ पी. ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस नॉर्म पी which is equal to maximum of delta x1 comma delta x2 and so on delta xn. इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी वैल्यू ऑफ नॉर्म p. ओके, which can be written as maximum of delta xk where 1 is less or equal to k which is less or equal to n, or we can say that k varies from 1 to n. अभी ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. So now we have considered one example of partition. So here P is a partition containing minus 9 comma minus 6 2 3 4 8. So we can see that these elements are in a particular order, that is minus 6 is greater than minus 9, 2 is greater than 6 and so on. So अभी एक सब इंटरवल लेंगे P का. So x0 comma x1 विच इज़ इक्वल टू x0 क्या है यहाँ पे -9 है एंड x1 इज़ -6. तो अभी इसकी लेंथ निकालेंगे. सो इसकी लेंथ क्या मिलेंगी, लेंथ को ऐसे डिनोट करेंगे पहले डेल्टा 0 से. ओके, विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस x0. ओके, सो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -6 है and minus of -9 which is equal to -6 plus 9 which is equal to 3. okay, so इस पर्टिकुलर इंटरवल की लेंथ निकल गई 3. ओके, सो अभी x1 कॉमा x2 ये क्या है, सब इंटरवल है.
विच इज़ इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 है एंड x2 की 2 है। ओके, सो अभी डेल्टा 1 निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। ओके, x2 माइनस x1। ओके, और ये इसको कैसे डिनोट किया मैंने डेल्टा 1 से। ओके, सो x2 माइनस x1 विच इज़ 2 माइनस ऑफ -6, सो क्या मिलेगा 8। ओके, अभी दूसरा निकालेंगे डेल्टा 2 विच इज़ इक्वल टू x3 माइनस x2। ओके, सो यहाँ पे एक और सब इंटरवल आ जाएंगी x2 कॉमा x3 एंड फिर आ जाएंगी x3 कॉमा x4। ओके, x0 x1 x2 x3 x4 x5 भी आएंगी, सो x4 कॉमा x5। ओके, सो इनकी वैल्यूज़ पहले लिख देते हैं। सो इस तरह से मैंने सब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ओके, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4। सो डेल्टा 1 की वैल्यू मिली है 8, डेल्टा 2 इज़ इक्वल टू 1, डेल्टा 3 इज़ इक्वल टू 1 एंड डेल्टा 4 इज़ इक्वल टू 4। सो 8, 1, 1, 4 इन चारों में से किसकी लेंथ ग्रेटर है डेल्टा 1 की। ओके, सो 8 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू विच इज़ द ग्रेटेस्ट। अभी देखो इसमें क्या लिखा था नॉर्म के डेफिनेशन में, द ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ पार्टीशन P। ओके, सो पहले तो सब इंटरवल्स निकाल ली पार्टीशन P की, अभी उनकी लेंथ भी निकाल ली, तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट होंगी वो होगा नॉर्म ऑफ P। ओके, सो यहाँ पे नॉर्म ऑफ P क्या है, ग्रेटेस्ट लेंथ क्या है सब इंटरवल की, यहाँ पे 8 है, सो नॉर्म P इज इक्वल टू 8। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिफाइनमेंट। सो इट्स डेफिनेशन इज द पार्टीशन P star is called a refinement of P if P star is a superset of P, or in other words we can say that partition P star को कब बोलेंगे रिफाइनमेंट है वो P का, जब P सबसेट होगा P star का। ओके, सो द कॉमन अलाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 इज गिवन बाय P star which is equal to P1 यूनियन P2। सो ये समझो वैल्यू है P star की। ओके, एंड P star को कब बोलेंगे कि वो रिफाइनमेंट है, जब P उसका सबसेट होगा, कोई यानी अलग पार्टीशन हमको मिलेगा P star विच इज़ अ सुपरसेट ऑफ P, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है रिफाइनमेंट है। ओके, so this was all about length, norm, refinement and partition. So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.